is checked by tester. Do liquids also allow electric current to pass through them? Let us do an activity to know this. हो गया मैम? Okay. हाँ. Our elders might have cautioned us against touching an electrical appliances with wet hands. हमारे जो बड़े होते हैं, हमारे घर के जो बड़े होते हैं, वो हमें जो स्विच होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो एप्लियंसेस होते हैं, बिजली वाले जो सामान होते हैं, उसको गीले हाथों से छूने के लिए मना करते हैं ना? यस मैम। क्यों करते हैं मैम? क्योंकि उसमें करंट रहता है। क्योंकि गीले हाथों से छूने से हमें करंट लग सकता है ना। बट डू यू नो व्हाई इट इज डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स? क्या आप जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, उन्हें गीले हाथों से छूने से वो कैसे हमारे लिए खतरनाक हो सकते, कैसे हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। We know that some solid material allow electric current to pass through them like copper, aluminium, silver, etc. जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है कि कुछ जो मटेरियल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, कुछ जो मटेरियल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं ना। तो कुछ जो सॉलिड मटेरियल होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, ठीक है, जिसे हम गुड कंडक्टर कहते हैं, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ठीक। On the other hand, some solid material do not allow electric current to pass through them easily, like rubber, plastic, wood, etc. इसी तरह से कुछ और solid material होते हैं जो कि अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देती, जैसे कि रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, है ना। तो वो मटेरियल जो कि अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, उसे हम इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कहते हैं, और जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बैड कंडक्टर. Bad conductors of electricity. You all have seen at your home that conduction of electric current in solid material is checked by tester. आप लोग अपने घरों में देखे ही होंगे कि करंट को चेक करने के लिए हमारे घरों में सॉलिड मटेरियल में, किसी भी सॉलिड मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट को चेक करने के लिए टेस्टर का यूज किया जाता है। टेस्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को चेक किया जाता करते हैं। यस मैम। हाँ, कैसे पता चलता है? अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होगी तो जो टेस्टर का लाइट होता है वो जलने लगता है ना। यस मैम। हाँ, the liquids also allow electric current to pass through them. इसी तरह से जो लिक्विड्स होते हैं वो भी अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं कि कैसे लिक्विड अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, ठीक है। दृष्टि रीड करो एक्टिविटी 1। Yes, ma'am. Activity 1. Material required: plastic or rubber cap or a beaker, vinegar or lemon juice, 2 testers, battery, bulb, 2 electric wires. Take a small plastic or rubber cap of discarded bottle and pour 1 teaspoon of lemon juice or vinegar in it. Connect one tester to the battery and another tester to the bulb with the help of connecting wire as shown in figure 11.1. Now join the other terminal of the battery to the wire connected to the bulb. Bring the ends of the 2 tester and dip it in lemon juice or vinegar solution. Take care that the ends are not more than 1 centimeter apart, but at the same time do not touch each other. Does the bulb of the tester glow? Does lemon juice or vinegar conduct electricity? How would you classify lemon juice or vinegar, a good conductor or a poor conductor? Before doing the activity, check whether tester and cell are working properly or not. Repeat the same activity with other liquids like pure water, milk, etc. and check whether they are good conductors or poor conductors. Thus we saw that when the liquid between the 2 ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete. The current flows in the circuit and the bulb glows. And when the liquid pure water does not allow the electric current to pass,
The circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow. In some situations, even though the liquid is conducting, the bulb may not glow. What can be the reason? You know that on passing electricity through the bulb due to the heating effect of the current, the filament of the bulb gets heated to a high temperature and it starts glowing. However, if the current through the circuit is too weak, the filament does not get heated sufficiently and it does not glow. Let's make another tester which can detect a weak current. मैम हो गया? ओके, हाँ। एक्टिविटी 1, मटेरियल आपको लेना है प्लास्टिक या फिर रबर का कैप या बीकर लेना है, ठीक है। विनेगर या फिर लेमन जूस ले सकते हैं। 2 टेस्टर लेना है, बैटरी, बल्ब, 2 इलेक्ट्रिक वायर्स। Take a small plastic or rubber cap of discarded bottle and pour 1 teaspoon of lemon juice और vinegar। आपको क्या करना है, एक बॉटल लेना है ना, एक खराब वाला बॉटल लेना है या बीकर ले सकते हैं, और छोटा सा प्लास्टिक या फिर रबर का कैप लेना है, और जो बॉटल आपने लिया है उसमें 1 टीस्पून लेमन जूस या विनेगर, लेमन जूस भी डाल सकते हैं या विनेगर डाल सकते हैं, डाल देना है। उसके बाद कनेक्ट 1 टेस्टर टू द बैटरी एंड अनदर टेस्टर टू द बल्ब विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, कनेक्टिंग वायर के थ्रू एक टेस्टर को किससे अटैच किया गया है, एक टेस्टर को बैटरी से कनेक्ट किया गया है और दूसरे टेस्टर को बल्ब से कनेक्ट किया गया है ना, दिख रहा है। नाउ join the other terminal of the battery to the wire connected to the bulb। अब यहाँ पर देखिए बैटरी का जो अनदर टर्मिनल है, ठीक, वो किससे जुड़ा हुआ है, बल्ब से जुड़ा हुआ है वायर के थ्रू। Bring the ends of the 2 tester and dip it into lemon juice और vinegar solution। आपको क्या करना है, जो 2 टेस्टर आपने लिया है उसका जो एंड होगा उसको आपको लेमन जूस में डीप करना है। टेक केयर दैट द एंड्स आर नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर अपार्ट बट द सेम टाइम डू नॉट टच ईच अदर। आपको ये देखना है कि आप जो टेस्टर ले रहे हैं उसको जब आप लेमन जूस में डुबाते हैं, है ना, डीप करते हैं, तो वो एकदम गहरा भी नहीं जाना चाहिए और जो 2 टेस्टर लिए हुए हैं आपने वो एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। डज द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो? क्या टेस्टर में जो बल्ब है वो जलने लगेगा? डज द लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या लेमन जूस या विनेगर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है? हाउ वुड यू क्लासिफाई लेमन जूस और विनेगर अ गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर? आप लेमन जूस या विनेगर को गुड कंडक्टर कहेंगे या पुअर कंडक्टर, उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो इन सब के आंसर हमें मिलेंगे। बिफोर डूइंग द एक्टिविटी चेक वेदर टेस्टर एंड सेल आर वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। जब भी आप इस एक्टिविटी को करेंगे तो सबसे पहले आपको टेस्टर को चेक कर लेना है कि जो टेस्टर है या जो सेल है, बैटरी जो है, वो सही से काम कर रहा है या नहीं। और उसके बाद इसी एक्टिविटी को हमें दूसरे लिक्विड्स के साथ में भी टेस्ट करना है। जैसे आप प्योर वाटर ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको बताना है कि ये गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर। अगर टेस्टर का लाइट जलता है तो दैट मीन्स कि जो लिक्विड है कि वो क्या है, गुड कंडक्टर है। और अगर बल्ब नहीं जलता है इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो जो लिक्विड है वो बैड कंडक्टर है, ठीक है। Thus we saw that when the liquid between the 2 ends of the tester तो हम क्या देखते हैं कि when the liquids between the 2 ends of the tester allow the electric current to pass, the circuit of the tester become complete।
जब आप लिक्विड जब आप टेस्टर के बीच में लिक्विड्स को डालते हैं, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक करंट है, अगर टेस्टर का लाइट जलता है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ठीक। तो इस तरह से जो सर्किट होता है वो कंप्लीट होता है। द करंट फ्लो इन द सर्किट एंड द बल्ब्स ग्लो। सर्किट में से करंट फ्लो होने लगता है और बल्ब जो है जलने लगता है। एंड व्हेन द लिक्विड लाइक प्योर वाटर डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास इन, द सर्किट ऑफ द टेस्टर इज नॉट कंप्लीट एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। और जैसे कि प्योर वाटर अगर आप लेते हैं तो प्योर वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। समझ? हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, इसका मतलब ये है कि जो लिक्विड है, जो प्योर वाटर है, वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, और जो सर्किट होता है वो कंप्लीट नहीं होता, बल्ब भी जलता नहीं है। इन सम सिचुएशन इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब में नॉट ग्लो। कुछ सिचुएशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होती है लेकिन बल्ब नहीं जलता। इसका क्या रीजन हो सकता है? यू नो दैट ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द बल्ब ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट ग्लोइंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब बल्ब में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो हीटिंग इफेक्ट के कारण जो है करंट जो है फ्लो होती है ना, और बल्ब में जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट क्या होता है बल्ब का? क्या होता है? क्या चीज मैम? फिलामेंट किसको बोलते हैं? बल्ब के अंदर जो थीन वायर होता है, पतला सा जो वायर होता है, उसको हम फिलामेंट कहते हैं ना। यस मैम। तो हाई टेम्परेचर की वजह से हीट होता है और जो बल्ब है वो जलने लगता है। However, if the current through the circuit is too weak, अगर मान लीजिए जो सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो बहुत कम है, बहुत वीक है, ठीक है, तो जो फिलामेंट होता है वो अच्छी तरह से हीट नहीं हो पाता और बल्ब जो है अच्छे से जलता नहीं है। लेट्स मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट वीक करंट। अब यहाँ पर देखिए हम एक और टेस्टर लेते हैं जो कि वीक करंट को डिटेक्ट करता हो, पहचान सकता हो, ठीक है, कि इसमें वीक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। तो चलिए हम एक्टिविटी 2 देखते हैं। आकृति रीड करो। यस मैम। मैम दो यस मैम कर दो। एक्टिविटी 2, मटेरियल रिक्वायर्ड, discarded matchbox, small magnetic compass, connecting wire, battery. Take the tray from inside a discarded matchbox, place a small magnetic compass inside it. Now, according to the figure 11.2, wrap an electric wire a few times around the tray. Now connect one free end of the wire to the terminal of a battery. Leave the other end free. Take other pieces of wire and connect it to the other terminal of the battery. Join the free ends of two wires momentarily. Should the compass needly show any deflection due to passing electricity in the circuit path, compass needle saw deflection. Now dip the free ends of the tester in lemon juice. Do you find any deflection? Why does this happen? Lemon juice, being good conductor, passes electricity through itself. Repeat the activity with other liquids like distilled water, vegetable oil, etc. Instead of lemon juice. In each case, observe whether the magnetic compass needle saw deflection or not.
record your observation in table 11.1. ओके, हाँ। एक्टिविटी 2 में आपको क्या लेना है? डिस्कार्डेड मैच बॉक्स, मतलब खराब मैच बॉक्स लेना है। स्मॉल मैग्नेटिक कंपास लेना है, एक छोटा सा मैग्नेटिक कंपास आता है, ठीक, और कनेक्टिंग वायर और बैटरी लेना है। टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। मैच बॉक्स का जो ट्रे होता है ना, जो माचिस जो देखा है उसमें जो जिसमें तीलियां भरी होती हैं, वो वाला आपको क्या कर लेना है, वो वाला जो हिस्सा है उसको आपको लेना है, ठीक है। ट्रे वाला हिस्सा आपको लेना है मैच बॉक्स का, और उसमें आपको क्या करना है, जो मैग्नेटिक कंपास हमने लिया है, छोटा सा मैग्नेटिक कंपास, उसको उसके अंदर रख देना है। नाउ अकॉर्डिंग टू द फिगर 11.1, रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम अराउंड द ट्रे। अब आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रिक वायर लेना है और उसको कई बार जो ट्रे हमने लिया है उसके ऊपर उसको क्या कर देना है, रैप कर देना है, ठीक है, लपेट देना है, जैसे कि फिगर में दिख रहा है। 11.2 में आपको दिख रहा है। Yes, ma'am. एक सेकेंड, मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ देखिए एक मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स का ट्रे वाला एरिया हमने लिया है, ट्रे वाला हिस्सा हमने लिया, उसमें हमने एक छोटा सा इलेक्ट्रिक कंपास हमने सॉरी मैग्नेटिक कंपास हमने डाल दिया है, और जो वायर हमने लिया है उसको इसके चारों तरफ लपेट दिया है, ठीक है, दिख रहा है। Yes, ma'am. हाँ। नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। अब आपको क्या करना है, जो वायर आपने लपेटा हुआ है ना, उसका एक एंड जो खुला वाला एंड है उसको आपको किससे कनेक्ट कर देना है, बैटरी से कनेक्ट कर देना है, और जो दूसरा एंड है उसे छोड़ देना है। टेक अनदर पीस ऑफ वायर एंड कनेक्ट इट टू द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब आपको क्या करना है, फिर से एक वायर लेना है, वायर का टुकड़ा लेना है, और उसे बैटरी का जो दूसरा टर्मिनल है, दूसरा एंड है, उससे कनेक्ट कर देना है। जॉइन द फ्री एंड ऑफ वायर मोमेंटरली। शुड द कंपास निडल शो एनी डिफ्लेक्शन? क्या जो कंपास का निडल है उसमें कोई भी आपको डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है? कंपास की जो सुइयां होती है वो आपको घूमती हुई दिखाई दे रही है, ठीक? तो ड्यू टू पासिंग इलेक्ट्रिसिटी in the circuit path, कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो कंपास का जो नीडल होता है, जो सुई होती है, उसमें डिफ्लेक्शन होने लगता है, सुई जो है वो घूमने लगती। नाउ डीप द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर इन लेमन जूस। अब आपको क्या करना है, जो एक वायर जो हमने लिया था जिसका एक एंड हमने बैटरी से कनेक्ट किया था, दूसरा जो आपने लिया था उसे आपको लेमन जूस में डीप कर देना है। क्या अब आपको कोई डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है? व्हाई डज दिस हैपन? लेमन जूस बीइंग गुड कंडक्टर पासेस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इटसेल्फ। लेमन जूस क्या होता है? लेमन जूस इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ठीक है। रिपीट द एक्टिविटी विद द अदर लिक्विड। इसी तरह से दूसरे लिक्विड में भी आपको इस एक्टिविटी को रिपीट करना है, जैसे कि वाटर लेना है या वेजिटेबल ऑयल्स लेना है, ठीक। और लेमन जूस की जगह आप कोई भी लिक्विड ले सकते हैं और उसमें इस एक्टिविटी को रिपीट कर सकते हैं। अगर जो कंपास है उसका नीडल डिफ्लेक्ट होता है, इसका मतलब है कि वो जो लिक्विड है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। In each case, observe whether the magnetic compass needle show deflection or not. Record your observation in table 11.1. आप जो भी ऑब्जर्वेशन क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आगे हम पढ़ते हैं। Actually, under certain condition, most material can conduct electricity. मतलब बहुत सारे जो मटेरियल होते हैं वो कुछ कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। That is why it is preferable to classify material as good conductor and poor conductor instead of classifying as conductors and insulator. और अगर हम इस तरह का कोई भी एक्टिविटी करते हैं, ठीक, तो कुछ जो मटेरियल होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, इससे पता चलता है कि कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, कौन सा पुअर कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर या फिर इंसुलेटर को डिफाइन करने के बजाय
हमें ये पता चलता है कि कौन सा मटेरियल गुड कंडक्टर है या फिर पुअर कंडक्टर है. If the above activity, we have seen that distilled water does not passes electricity through it, but the water that we get from sources such as taps, hands pump, wells and ponds is not pure. देखिए, इन सब एक्टिविटी में हमें ये पता चलता है कि जो प्योर वाटर होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता, वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता. लेकिन जो हमें सोर्सेस से जो वाटर मिलता है, जैसे कि टैप वाटर, नल का पानी, हैंडपंप का जो पानी होता है, कुएं का जो पानी होता है, तालाब का जो पानी होता है, ये प्योर नहीं होता और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है. इट मे कंटेन सेवरल सॉल्ट डिसॉल्व इन इट. ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि पॉन्ड वाटर, टैप वाटर, हैंडपंप का जो वाटर होता है, इसमें सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं. ठीक है. और मैम कुछ अमाउंट में. हाँ मैम, मैंने ना आपको ग्रुप में वो कॉपी चेक कराने के लिए भेज दिया है, ओके ओके. चेक कर और दो। कुछ अमाउंट में सॉल्ट के साथ में मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक. और ये जो वाटर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं. लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें सॉल्ट या मिनरल्स नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है. नाउ यू अंडरस्टैंड दैट व्हाई यू आर नॉट कॉशन अगेंस्ट टचिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विथ वेट हैंड्स. अब आपको समझ आ ही गया होगा कि गीले हाथों से कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, बिजली के सामान को क्यों नहीं छूना चाहिए. समझ आ गया? यस मैम। क्लियर है ना यहाँ तक सभी को? यस मैम। मैम हाँ, मैम आपने चैप्टर 10 का जो मेन क्वेश्चन आंसर है वो करवाया है कि नहीं? मैंने सब सेंड कर दिया है. मैम हाँ मैम आप चेक करो ना कि दूसरा क्लास स्टार्ट होने वाला है। ओके ओके. मैं अभी चेक आप लोगों कर को क्लास. हाँ ठीक है, मैं चेक कर देती हूँ. ठीक है, क्लास यहाँ पर मैं एंड कर रही हूँ. ओके दो मैम।